Assalamu alaikum, everyone. Come on. Okay, assalamu alaikum again. In the last lecture, I was teaching you about these phases, and my signals dropped at here. I was talking about G0 phase, but today's topic is mitosis. But I will quickly cover this. G0 phase is a phase where cells enter from G1 phase और न्यूरॉन्स में आई टोल्ड यू कि समटाइम्स अगर न्यूरॉन्स जब एडल्ट पर्सनस की G0 फेज में एंटर होती हैं तो वो इनडेफिनेट होता है, परमानेंटली एंटर हो जाती हैं. लेकिन लिवर और किडनी के जो सेल्स हैं अगर वो G0 फेज में एंटर होते हैं तो दैट इज सेमी परमानेंट. समटाइम्स दे कैन again enter into dividing phase, but there are certain cells which do not enter into G0 phase altogether, like epithelial cells, जिसमें हमने बहुत सारी types पढ़ी थी कि some of them make skin, some of them make internal linings of organs, some of them makes internal linings of glands, right? तो ये epithelial cells जो हैं ये तो इनकी requirement इतनी ज़्यादा है कि they never enter into G0 phase, because वो देखें ना skin जैसे हमारी exposed है to environmental hazards and damages. So skin के cell to keep on dying and keep on creating skin cells keep on dividing and creating new cells. और देखो dead भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारी skin जो है I don't really remember but millions of cells जो हैं वो रोज ही I don't remember exactly but they are dying and degrading. इसी तरह inner lining of gut जो है उसमें भी dead cells goes to feces. So these they do not enter into G0 phase. अच्छा, तो I just want to tell you here कि culture में outside human body or outside in the lab, S phase में cells spend 6 to 8 hours. G2 phase में अच्छा G1 phase में 6 to 12 hours, S phase में 6 to 8 hours, it depends. G2 phase में 3 to 4 hours, while in M phase they are spending 1 hour. So as I told you, 90% of the time is spent on in during interphase, and M phase में थोड़ा time spend होता है. This is I just wanted to tell you here. Now let's start our topic of today, which is mitosis. I'm going to cover inshallah in this lecture ताकि एक ही लेक्चर में सारी बात हो जाए. हमने वीडियोस भी पहले देख ली हुई हैं तो और इजी हो जाएगा समझना. अच्छा, this process was introduced in 1880s by Walter Fleming. Okay, he was a German biologist and he actually observed nucleus and he saw that nucleus is undergoing series of changes, or because he obviously observed for many times and he called this process as mitosis. Now the question comes in our mind, what is mitosis? है क्या? बिल्कुल easy words में अगर मैं कहूँ तो mitosis is a process कि जिसमें parent cell की copy बनाई जाती है. Exactly. It's a type of cell division in which a cell is dividing into two daughter cells. One cell is dividing into two daughter cells and each of them are having the same number of chromosomes as parent cell. अब पेरेंट सेल का ये मतलब नहीं है कि अम्मी अबू, और डॉटर का ये नहीं मतलब कि बेटी पैदा हो रही है. नो, दिस इज जर्नलाइज्ड टर्म कि जो ओरिजिनेटिंग सेल है, एक्चुअल सेल है, उसको पेरेंट सेल कह रहे हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स आ रही हैं सेल्स की उनको डॉटर कहा जा रहा है. बट ये बेटी और बेटा और माँ बाप नहीं है. ओके, यू नो दैट. आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. अच्छा, it happens only in eukaryotic cells and in multicellular organisms that somatic cells undergo mitosis. I have to tell you what somatic cells are, what sex cells are, or ठीक है. There are two types of cells. जो हमारे normal cells होते हैं other than sex cells, they are called as somatic cells. And what are sex cells or germline cells? यहाँ पर हूँ मैं. यानी sperm and egg का आपने नाम सुना होगा. I have taught my students in क्या था
द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम जाइगोट का हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें स्पर्म एंड एग का बताया था. स्पर्म इज मेल सेल एंड एग इज फीमेल सेल. तो we can also call them germ-line cells or sex cells. तो sex cells mostly higher multicellular organisms में meiosis में जाते हैं, और normal जो cells होते हैं बाकी, जैसे हमारे brain cells, eye cells, skin cells, gut cells, they undergo mitosis. ठीक है, माइटोसिस में सेम कॉपी बनती है एग्जैक्ट लाइक पेरेंट सेल, और मियोसिस में जेनेटिक मेकअप हाफ हो जाता है. तो ये तो जब हम पढ़ेंगे तभी एक्सप्लेन करूंगी. लेकिन ये हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है. कभी कभार स्पेशली इन प्लांट्स किस्सा थोड़ा मुख्तलिफ भी हो जाता है, यानी कि नॉर्मल सेल्स में मियोसिस हो रही है और सेक्स सेल्स में माइटोसिस हो रही है. लेकिन आई जस्ट आपको सिर्फ ये मैं जर्नल नॉलेज दे रही हूँ, डू नॉट एम्फसाइज ऑन इट, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में सिचुएशन डिफरेंट भी हो जाती है, प्लांट्स में सिचुएशन डिफरेंट भी हो जाती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस, sex cells or germ-line cells undergo meiosis. Now, why prokaryotes do not undergo a proper mitosis? Question. Prokaryotic cells जो होते हैं, आपको पता है, they do not have a proper nucleus and they do not have any organelles. तो न्यूक्लियस नहीं है, और जब ऑर्गेनील्स नहीं है तो सेंट्रियूल नहीं है. सेंट्रियूल चाहिए होता है और स्पिंडल फाइबर्स चाहिए होती हैं प्रॉपर माइटोसिस को करने के लिए. तो यहाँ पर चूंकि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनती, जिसकी वजह से माइटोसिस नहीं कह सकते इस प्रोसेस को. सारा कुछ वही होता है, लेकिन इन मेजर चीज़ों की वजह से प्रोकैरियोट्स में इसको कहते हैं बाइनरी फिशन, यानी अ सेल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, सेम कॉपीज, लेकिन उसको माइटोसिस नहीं कहते. आई हैव टोल्ड यू द आंसर, ओके. दिस क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम्स कि प्रोकैरियोट्स माइटोसिस क्यों नहीं करते. अदन प्लीज, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So let's go to the phases and discuss phases of mitosis. Major phases जो हैं वो karyokinesis and cytokinesis है. Karyokinesis में karyo means nucleus and kinesis means division, so it's division of nucleus. और cyto means cell and kinesis means division, so it's division of cytoplasm. तो पहले हम karyokinesis की सारी stages पढ़ेंगे, and then we will talk about cytokinesis. You should know that mitosis is a highly regulated process and it's a complex process. अच्छा, हमें पढ़ने में भी मुश्किल लग रहा होता है, इतना मुश्किल नहीं है if you grasp the concept कि असल में हो क्या रहा है. इजी वर्जन अभी बताती हूँ मैं, तो आप उसको grasp कर लें, तो अगर डिटेल बंदा याद कर ही लेता है. तो लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ तो बहुत सारी केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि आपको अभी नहीं पढ़ाई जाएंगी. तो इंसान अल्लाह की शान पे हैरान होता है कि यार माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इतने ज़्यादा केमिकल्स, इतना ज़्यादा रेगुलेशन है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. एक चीज़ नहीं होगी तो द प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू रन स्मूथली. सो जैसे हम स्टार्स और गैलेक्सीज और क्लस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं अपने एग्जिस्टेंस के बारे में. तो अगर आप डीप डाउन सेल के अंदर भी जाओ तो भी आप परेशान हो जाते हैं कि या अल्लाह ये है क्या. So one should read all these things with interest, because this is how you can learn and understand the concepts. Khali learning is not knowledge. Go ahead, after understanding this lecture, go ahead and watch YouTube videos. But obviously बहुत highly complicated तो आप देख नहीं सकते. But अगर कोई भी mitosis की complicated video भी देखते हैं तो you will be astonished to know,
ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल। तो आपको अपनी हैसियत का पता चलता है कि यार व्हाट आर वी, व्हाट इज आवर एग्जिस्टेंस। सही, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज मैं आई वांट टू वाइंड अप इन 40 मिनट्स। अच्छा, तो अगर हम इस तरफ देखें, इस डायग्राम को मैंने इसलिए पहले इंक्लूड किया जस्ट टू टेल यू ओवरऑल व्यू ऑफ माइटोसिस। अच्छा, थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, लेकिन इफ यू फोकस ऑन द डायग्राम देखें कि ये है इंटरफेस की स्टेज, जहां पर क्रोमोसोम्स आर नॉट prominently visible under the microscope. Thin thread-like structure is called as chromatin. हमजा बेटे, अदन को खामोश रखो। तो राइम्स पे लगाया है। So let's see. And what happens in prophase? ये प्रोफेज है। The chromosome starts to visible under the microscope. Coiling and condensation हुई है, क्रोमोसोम्स नजर आने शुरू हो गए। और ये जो सेंट्रोसोम है, जो कि मैं बताऊंगी, सेंट्रियोल का कॉम्बिनेशन स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गई है मेजर। तो यहाँ पर मेजर चीजें ये हो रही हैं। और मेटाफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम सेंटर में अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। और एनाफेज में क्या हो रहा है, सेंट्रोमेयर डिवाइड हो रही है और जो है क्रोमेटिड्स अलग हो गए हैं। इक्वल 1 2 3 4। अच्छा, अभी आपको एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स हैव स्टडीड दीज वीडियोस बिफोर, तो उनको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ टच करी कि एनाफेज में सिर्फ ये हो रहा है। और टेलोफेज में न्यूक्लियाई बन गए हैं, 2 न्यूक्लियाई हैव फॉर्म्ड, क्रोमोसोम्स हैव सेपरेटेड और साइटोकाइनेसिस होने शुरू हो गई है इन नेक्स्ट स्टेज, और द 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म व्हिच आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल। तो आपने ये याद रखना है कि दिस इज व्हाट हैपनिंग इन ऑल दीज फेजेस। अच्छा, अगर आपको अभी नहीं समझ आई तो यू कैन come to this point at the end of the lecture, okay, to know कि ये मेजर चीजें प्रोफेज में हो रही हैं, ये मेटाफेज में, ये एनाफेज और टेलोफेज में, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे भी मैं यही बताना चाह रही हूँ कि लुक एट द इंटरफेस कि क्रोमोसोम विजिबल बहुत ज़्यादा कम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और प्रोफेज में क्रोमोसोम्स विजिबल हो गए, कंडेंस हो गए और स्पिंडल फाइबर भी बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जबकि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्फ इन द सेंटर। इवन हाई रेजोल्यूशन में लाइट माइक्रोस्कोप में इस तरह से नजर आते हैं क्रोमोसोम्स, रियल लाइफ में भी। यू नो, जो भी हम पढ़ते हैं ये एनिमेटेड पिक्चर्स होती हैं, रियल नहीं होती, लेकिन रियल लाइफ में भी मैंने एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स ऐसे सेंटर में अलाइन हुए हुए देखे हुए विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेक्निक। और एनाफेज में इस तरह से एंड्स पे पहुंच जाते हैं। और टीलोफेज में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और साइटोकाइनेसिस जब होती है तो 2 सेपरेट सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये मेजर इवेंट है। नाउ लेट्स गो टू द डिटेल, ठीक है। आई टोल्ड यू कैरोकाइनेसिस की क्या फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज में मेजर क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन और ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल, व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज। सबसे पहले when cell enters into dividing phase, it enters into prophase. I told you in interphase chromosomes are thin thread-like structures, and the thin thread-like structures are called as chromatin. So as a first stage of prophase, chromosomes start to coil and condense, and when they condense and becomes visible under the microscope like this, they are called as chromosomes at this stage. अच्छा, let's look at this diagram. सबसे पहले क्रोमोसोम इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज डीएनए। The double helical strands are joined together. It's called as DNA. DNA starts coiling इस तरह से साइड, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की तरह से coil होना शुरू होता है। And that spring-like coils is wrapping around histone proteins. यानी एक प्रोटीन है, उसके गिर्द 2 चक्कर लगा रही है धागे की तरह से। जान के आपको इजी वर्ड्स में बता रही हूँ कि डीएनए जो स्प्रिंग की तरह का डीएनए है, इट्स कॉइलिंग अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये देखें यहाँ पे कैसी ये पेरेंट्स आ रही है, एज इफ बीड्स ऑन अ क्या के नेकलेस।
और ना माला, जो बड़ी सारी माला होती है और उसमें बीज होते हैं, उस तरह की अपेयरेंस है, उस तरह की, वैसे नहीं। तो अब ये जो बीट्स और स्ट्रिंग्स हैं, दे आर कॉइलिंग फर्दर coil, and then further more coiling makes it appear like this under the microscope. See, इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, ये जो कॉइलिंग हो रही है और अटैचमेंट हो रही है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन्स। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स फर्दर आपस में अटैच हो रही हैं, यहाँ पर तो रैप हो रही हैं 4 balls like structure, basically histone proteins, और ये फर्दर आपस में जुड़ती जा रही हैं like a magnet, not actually like a magnet, okay, bonds बन रही हैं, further attachment, and as a result of coiling and condensation, chromosome looks like that. If you look at this diagram, I just want to tell you here DNA is 2 nanometer in size, और जब beads on a string becomes 11 nanometer, size बढ़ रहा है, further जो coiling हो रही है, तो the size is 30 nanometer. Further coiling हो रही है, जो इस bead like structure की further यूं इस तरह से coiling हो रही है, तो this is 300 nanometer thick, और इसकी further coiling जब होगी, it becomes 700 nanometer thick. So later on it becomes like a chromosome, and chromosome is overall 1400 nanometer thick. ठीक है, thickness wise, not length wise. So this is how coiling and condensation of chromosome takes place at the first stage, and chromosome becomes visible in under the light microscope. वरना light microscope में भी नहीं नजर आते, cell dividing phase में नजर आते हैं, cell division में, okay? अच्छा, अच्छा, अब जब coiling and condensation होगी, तो what is the structure of a chromosome? पहले तो thin thread like structure था ना, उसको हमने बोला chromatin. Remember, thin thread like structure of DNA is called as chromatin. When it becomes visible under the microscope, now we call it as chromosome. The chromosome consists of 2 strands, one and the other one. इस सिंगल को हम कहते हैं chromatid, और इसको भी कहते हैं chromatid. ये जो chromatid है, remember S phase में पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि duplication और replication of chromosomes takes place during S phase of interphase. याद रखिएगा, sister chromatids are formed in S phase of interphase. तो ये पहले से ही डबल था. These are sister chromatids, exactly copy of each other, same genes. जो जीन यहाँ पर है वही जीन यहाँ पर है, जो जीन यहाँ पर है वही यहाँ पर है. एक क्रोमोसोम में भी thousands of genes होते हैं, depends from chromosome to chromosome, but thousands of genes होती हैं. तो ये chromatid है, और सेंटर में the point of attachment is called as centromere. And then there is another thing, yellow, kind of a additional protein, is called as kinetochore. Kinetochore is a complex protein present on centromere. It is the site of attachment of spindle fiber. ये नहीं होती, लेकिन kinetochore ऐसी एक complex protein है where the spindle fiber comes and attach itself. ठीक है? What's the purpose of spindle fiber? It will be clarified in metaphase and anaphase. Okay? ये मकसद क्या है spindle fibers का? तो spindle fibers आकर attach कहाँ होती है? Kinetochore पर, which is a complex protein. See, this is about the structure of chromosomes, and I just want to tell you about what happens in prophase. Let me just see in the next line. अच्छा, प्रोफेज में ये सारी चीजें होती हैं कि न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिग्रेड होना चाहिए. अच्छा, बचपन में जब मैं पढ़ती थी डिसअपेयर, आई यूज्ड टू थिंक कि गायब हो गया, लाइक अ मैजिक. डिसअपेयर का तो बंदा यही मतलब समझता है ना, एक्चुअली डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है वहीं पर ही. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फिर दोबारा बन जाता है लेटर ऑन इन टीलोफेज. लेकिन अभी प्रोफेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पर nucleolus is degrading. Nuclear membrane is also starts to degrade in the early prophase. Late prophase में तो गायब ही हो जाएगा ना. Chromatin condenses into chromosomes,
और सेंट्रोजोम। अच्छा पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज सेंट्रियूल। हमने फोर्थ चैप्टर में सेंट्रियूल को पढ़ा हुआ है ना, which is present in animal cell. तो सेंट्रियूल, ये दो सेंट्रियूल together is called as centrosome. Two centrioles together is called as centrosome. ठीक है, ये टी शेप की फॉर्म में होते हैं। तो प्रोफेज में one centriole is actually dividing into two centrioles. Oh, I'm sorry, यानी कि one centrosome is dividing and making two centrosome, और एक सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियूल्स। ठीक है, तो रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम हो रही है इन प्रोफेज। सी, तो यहाँ पर ये प्रोफेज में होना शुरू हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर भी बनना शुरू हो गई हैं फ्रॉम सेंट्रोसोम। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू ओरिजिनेट, बट इन लेट प्रोफेज, ये देखिए सेंट्रोसोम पर स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गई हैं, एंड लेट प्रोफेज में spindle fibers are formed and they are basically invading the whole central space of cell, right? ये late प्रोफेज में हो रहा है। अच्छा, ये स्टेप मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट्स, एंड ये देखें सेंट्रोसोम, आई हैव शोन यू टी शेप सेंट्रोसोम पीछे consists of two centrioles. So centrosomes have duplicated and they have started to migrate. Migrate means opposite poles की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। हिजरत means moving towards opposite poles, north and south pole. अच्छा, जरूरी नहीं है कि नॉर्थ और साउथ पोल ही बने, लेकिन पोल्स बन रहे हैं, opposite poles, like a जैसे गेम्स में होते हैं opposite poles। ठीक है, तो opposite poles में चले गए and the spindle fibers are starting to invade the central space. अच्छा, ये मैं बता चुकी हूँ। Now, what are these spindle fibers? Spindle fibers are formed of tubulin proteins and they make these tubulin proteins are making microtubules. अच्छा, फोर्थ चैप्टर में हमने बताया हुआ है कि tubulin protein is making centriole and tubulin protein is also making cilia and flagella. cilia भी tubulin protein से बनता है, flagella भी, centriole भी। ठीक है, और ये microtubules भी in the spindle fibers are of tubulin protein. तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन में भी थी। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या क्या चीजें बनाती है। अच्छा, दिस कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल। अच्छा, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट स्टेज ऑफ प्रोफेज में आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियोलस डिग्रेड हो जाता है, गायब, डिसअपेयर का वर्ड यूज होता है, बट असल में टूटता है, और न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक होता है। ओके, तो this is all about prophase, but there is something about mitotic apparatus in plant cells. अच्छा, इस सारे को mitotic apparatus कहते हैं। What is mitotic apparatus? Here it consists of centrosome, spindle fiber and chromosomes. Mitotic apparatus. But this mitotic apparatus in plant cell is different. Why? Because plants में centrioles नहीं होते। Plants lack centrioles, ये हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फिर कैसे बनेगी माइटोटिक अपरेटस? प्लांट्स में माइटोटिक अपरेटस बगैर सेंट्रियूल के बनती है। ये सेंट्रियूल नहीं होते, और स्पिंडल फाइबर्स होते हैं सिर्फ, एंड क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू अलाइन देमसेल्व्स ऑन द स्पिंडल फाइबर्स। तो इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स न्यूक्लियर एनवेलप की सरफेस पे के अंदर बनने शुरू हो जाती है, और लेटर ऑन न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है। तो मैं यूं कहूंगी कि प्लांट्स में माइटोटिक अपरेटस सिर्फ स्पिंडल फाइबर से बन रहा है, और उसके ऊपर क्रोमोसोम्स आकर अलाइन होना शुरू हो जाते हैं इन द सेंटर। ठीक है, तो दिस इज हैपनिंग इन प्लांट सेल्स। अच्छा, अब आई हैव टू मूव टुवर्ड्स मेटाफेज। 25 मिनट हो गए हैं, मैं और भी एलोंगेट कर सकती हूँ लेक्चर को, बट आई हैव टू सी 40 मिनट्स बिकॉज it will look nice to wind up the whole process in one lecture. अच्छा, वरना नॉर्मल क्लास में पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज you used to draw the diagrams too on the board, so it takes more time. Coming back to the topic, which is metaphase.
अच्छा, मेटाफेज में मेजर चीज ये हो रही है, chromosomes are aligning themselves on the center of the cell, ठीक है, on the center of the mitotic apparatus, ठीक है. How they are doing it? Basically, chromosomes are arranging themselves on the center or equator of cell. अच्छा, अर्थ के इक्वेटर भी कहाँ होता है? अर्थ का इक्वेटर जो है सेंटर ऑफ अर्थ में होता है ना, तो इक्वेटर ऑफ सेल का मतलब भी यही है, सेंटर ऑफ सेल. एंड एज अ रिजल्ट दे मेक मेटाफेज प्लेट. लेकिन क्रोमोसोम अटैच किस तरह से हो रहे हैं? बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, one of the kinetochore spindle fibers and non-kinetochore spindle fibers. As the name shows, as I told you earlier, यहाँ पर कि एक स्पिंडल फाइबर है जो काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रही है, इधर से आ रही है, और दूसरी स्पिंडल फाइबर दूसरी साइड से आ रही है, एंड दे अटैच ऑन काइनेटोकोर. तो ये तो हो गई काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, द वन व्हिच आर अटैचिंग ऑन काइनेटोकोर. बट देयर आर अदर which do not attach with the kinetochore. They attach with each other. ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होती, rather they attach with each other and they are called as non-kinetochore spindle fibers. See, ठीक है, दो तरह की हैं. तो जो kinetochore spindle fibers comes from this side and attaches with the kinetochore, and the other one comes from this side, opposite pole, and attaches with this side of kinetochore, and this is how chromosome align themselves on the central space on the equator of a cell, and then we call it as metaphase plate. I think it's clear by now. अब आप देखिए, it's very easy, लेकिन बच्चों को मुश्किल लगता है इसलिए कि कॉन्सेप्ट को सिंक करना है. आप लोग बस लर्निंग पे फोकस होते हैं. यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कि मेटाफेज में हो क्या रहा है. Chromosome are aligning themselves on the central space, and then there is a concept of kinetochore and non-kinetochore spindle fibers, right? So now let's move to the next thing. What happens in anaphase? Anaphase is a phase where basically chromosomes are splitting and making equal sets. वो मैं क्लियर करती हूँ. फर्स्ट आई मस्ट टेल यू कि स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू पुल टुवर्ड्स ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम. यहाँ पे क्रोमोसोम थे ना, तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं पुल होने शुरू हुई. ये वाली स्पिंडल फाइबर्स इस तरफ खींचने शुरू हो गई हैं, इस सेंट्रोसोम की तरफ, और ये वाली स्पिंडल फाइबर्स इस सेंट्रोसोम की तरफ खींचने शुरू हो गई हैं. पुल टुवर्ड्स ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम, जहाँ से आ रही हैं. सही. और होता क्या है कि क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है. इस फोर्स की वजह से यहाँ से सेंट्रोमेयर टूट जाता है एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट. ये अलग हो गई, ये अलग होगी. आई टोल्ड यू सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे की कॉपी हैं, बिल्कुल कॉपी. तो ये क्रोमेटिड इधर चला गया, ये इधर चला गया, जिससे होगा क्या कि now the sister chromatids are called as sister chromosomes, क्योंकि अलग हो गए. सिंगल क्रोमेटिड है लेकिन अलग हो गए, तो now they are sister chromosomes. Why I'm calling it sister? Because ये एक दूसरे की कॉपी हैं. 4 क्रोमोसोम थे ना पेरेंट सेल में, तो जब वो डिवाइड हुए तो 4, 1 2 3 4 are moving towards this pole, 1 2 3 4 are moving towards this pole. अच्छा, मैं 4 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने पेरेंट सेल में 4 लिए थे, ये ठीक है. लेकिन it varies from species to species. Different species have different chromosomes. Human have 46 chromosome in each cell. मैं अब और कोई एग्जांपल नहीं दूंगी जानबूझ के ताकि आप कंफ्यूज ना हो. I'm just focusing on human. Humans have 46 chromosome in one cell. Imagine in a microscopic cell 46 chromosomes are fit, और वो सारे के सारे इतनी complicated procedures से गुजर रहे हैं, and everything is going on really well. So तो आसानी के लिए हमने सिर्फ 4 क्रोमोसोम लिए यहाँ पर. चलो, coming back to the main point.
तो ये सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू टू सेपरेट ग्रुप्स एट ऑपोजिट पोल्स। अब ये जो आइडेंटिकल कॉपीज हैं, ये एक ये इसकी कॉपी ये है, इसकी कॉपी ये है, इसकी कॉपी ये है और इसकी कॉपी ये है, ठीक है। तो ये कॉपीज एक सेट इधर जा रहा है और एक सेट इधर जा रहा है, टू आइडेंटिकल कॉपीज बन रही हैं ऑन ऑपोजिट पोल, सही है। तो ये हो चुका एनाफेज में, ये होता है कि क्रोमेटिड्स सेपरेट and now they are called as sister chromosomes and they will move towards opposite pole and एक set create हो जाएगा। Let's talk about telophase और telophase। हम telophase कहते हैं पाकिस्तानी वर्जन, बट मैंने telophase भी सुना है, तो it will be good if you learn telophase. In telophase, it's basically reversal of prophase. The easiest way to learn about telophase is everything is happening reverse of prophase, सब कुछ वही हो रहा है बट ऑपोजिट टू प्रोफेज। यानी कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड एट ऑपोजिट पोल्स, तो वो अब अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए हैं और क्रोमोसोम्स अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन। यानी क्रोमोसोम जो हैं, जो थिक हो गए थे क्वाइल एंड कंडेंस होके, now they are unfolding back into a thin thread-like structure which is called as chromatin। यानी कि अनक्वाइल हो रहे हैं, वो क्वाइलिंग सारी खत्म हो जाएगी और दोबारा से थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ऐसे ये दोबारा से ऐसे थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, बट होगा ऐसे ही क्रोमोसोम लेकिन थ्रेड-लाइक। तो अनक्वाइल हो रहा है यहाँ पर दोबारा से, और यहाँ पर न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस का प्लूरल न्यूक्लियोलाई होता है, तो न्यूक्लियोलाई इज रीअपेयरिंग, दोबारा से बन जाएगा। वहीं पे ही सारी चीजें हैं न्यूक्लियोलस की, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड सारा, वो दोबारा से असेंबल हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन होती है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाली, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, वो सब मिलके दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। यानी कि ग्रास्प द कॉन्सेप्ट कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुका था दोबारा से असेंबल हो जाएगा, वहीं से सेल के मटेरियल से, सेल की सराउंडिंग में, साइटोप्लाज्म की सराउंडिंग में दोबारा से बन जाएगा, रीअपेयर। ओके, ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये एम्फसाइज कर रही हूँ कि रीअसेंबल हो जाता है, वहीं पर चीज़ें मौजूद होती हैं, गायब तो नहीं हो जाती ना, सही। अच्छा, ये हो गया जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो गया, न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो गया, क्रोमोसोम्स अनकॉइल बैक टू क्रोमेटिन, और क्या होगा? नाउ द न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीट। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलाई नहीं कहूंगी, न्यूक्लियाई, सही। और अब सेल डिवीजन रह गई है, तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड साइटोकाइनेसिस। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं 40 मिनट्स में वाइंड अप कर लूँगी लेक्चर इंशाल्लाह, और मे बी मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, what happens in cytokinesis? It's the division of cell. Nucleus have already been divided. तो एनिमल सेल में कैसे डिवीजन हो रही है? ऐसे, और प्लांट सेल में सेल डिवीजन ऐसे हो रही है। इन एनिमल सेल्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, माइक्रोफिलामेंट्स हैं दरमियान में आते हैं, तो those microfilaments again can be of tubulin protein. I'm not sure, but microfilaments and microtubules. Khair, I'm not sure here. But microfilaments are making a contractile ring. पूरा एक ring बना रही हैं. So that ring is contracting, contracting and contracting. As a result, a cleavage furrow is formed. ये गड़ा सा बन जाता है. और करते 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 pinch होते होते the two cells separate. This is how it happens in animal cells. But what happens in plant cells? Plant cells में चूंकि cell wall है, and cell wall is a strong structure, तो उसमें pinching करना मुश्किल है naturally. तो अल्लाह की तरफ से naturally what happens, there are certain vesicles which bring the cell wall material, यानी कि vacuoles type चीज़ें
गोल्जी वेसिकल्स या कोई भी वेसिकल्स दरमियान में आने शुरू हो जाते हैं. दे ब्रिंग द सेल वॉल मटेरियल एंड दीज वेसिकल्स ब्रेक और सेल प्लेट बनती जाती है. यानी सेल प्लेट बन रही है, फिर वेसिकल आया और फ्यूज हो गया, वेसिकल आया और फ्यूज हो गया, and this cell plate continues to grow from the center and it moves towards edges, and as a result a cell wall is formed and two separate plant cells are formed. This is how cell division takes place in plant cells. So this is all about cytokinesis in animal cells and plant cells. So what I want to show you more, I want to show you electron microscopic image of all these stages. 10 micrometer का image है. Girls, I must tell you कि light microscope में भी इस तरह से chromosomes नजर आते हैं, लेकिन you have to magnify the image at 40 resolution, 40 times या 45 पे आप उसको अगर करो और स्पेशल टेक्निक के जरिए डाई यूज करो, यानी स्टेन्स, कलरफुल पिगमेंट यूज करो, तो क्रोमोसोम्स नजर आते हैं. ग्रोइंग टिप्स ऑफ अनियन पे ही मोस्टली स्लाइड बनती होती हैं, तो उसमें ये मैंने खुद भी देखा हुआ है. और ड्यूरिंग आई मस्ट टेल यू टीचिंग के फेज में मैंने सारी देखा. हम स्टूडेंट लाइफ में हम स्लाइड्स अच्छी बनाते ही नहीं हैं कि वी कैन सी दीज स्टेजेस. तो आई मस्ट टेल यू दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज. आप समझेंगे, आप लाइव देख रहे हैं. प्रोफेज ऐसे नजर आती है. देखें, क्रोमोसोम इज नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड है, thin thread-like structure. This is prophase. This is metaphase. This is chromosome have reached towards opposite poles. तो ये क्या है? Anaphase है. This is, ये मुझे लग रहा है, this is telophase. क्योंकि two nuclei have formed. तो ये telophase है, right? Prophase, metaphase. Oh. Anaphase, telophase. So यहाँ पर मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करती हूँ, बट आई जस्ट वांट टू गो टुवर्ड्स दिस पिक्चर. नॉइजेस, इसीलिए रात को रिकॉर्ड करना इज बेस्ट. तो मैं इस पिक्चर में आपको अब बताऊंगी कि आपने कैसे सम अप करना है और अपने माइंड में क्या मेजर चीज़ें रखनी है. आपने अपने माइंड में मेजर चीज़ें ये रखनी है कि इंटरफेस में क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. दे आर थिन थ्रेड-like structure and we call them as chromatin. But as soon as cell enters into prophase, the chromosomes coil and condense and become visible under the microscope. और centrosome divide हो जाते हैं into two pair. यानी कि एक centrosome consists of two centriole. खैर ये नहीं अभी याद रखना. और centrosome में spindle fibers भी बनने शुरू हो जाती हैं. Until the end of late prophase, spindle fibers invade the whole central space. Or what happens in metaphase? Chromosome align themselves in the central space. ठीक है. और एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर पुल करती हैं, इतना पुल करती हैं कि सेंट्रोमेयर डिवाइड्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स बिकम सिस्टर क्रोमोसोम्स. सेपरेशन हुई और एक्चुअली एनाफेज में द क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. और एनाफेज, what happens in at the end of anaphase or what happens in telophase, equal number of chromosomes, equal number of chromosomes, जी बेटा मुझे पता है, equal number of chromosomes reach towards opposite poles. ठीक है. और फिर क्या होता है कि टीलोफेज में न्यूक्लियोलस reappears, nuclear membrane reappears, क्रोमोसोम अनकॉइल बैक टू क्रोमेटिन, और फिर साइटोकाइनेसिस होती है. तो ये मेजर चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस एंड आई एम हैप्पी. इंशाल्लाह आपके लिए ये लेक्चर इजी टू अंडरस्टैंड होगा और काइंडली ग्रास्प द कॉन्सेप्ट. उसका मेजर जो ये मैंने डिस्कस किया, एंड देन मेक द डायग्राम्स also, or you can revise the lecture to keep it in your mind.
अभी से मैं बता दूं कि बच्चे माइटोसिस को मियोसिस से कंफ्यूज करते हैं, बट इफ यू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट नथिंग इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर माइटोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है? आई एम कमिंग बैक टू द डेफिनेशन। माइटोसिस का कॉन्सेप्ट ही यही है कि पेरेंट सेल is dividing into exact copies of two daughter cells। यानी जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है, हमारी केस में 4 क्रोमोसोम थे ना पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल्स में भी 4 और 4 हैं। लेकिन अगर ह्यूमन सेल है और ह्यूमन सेल में कम ऑन, ह्यूमन सेल में अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल इज गोइंग टू हैव 46 क्रोमोसोम ओवर हियर एंड 46 क्रोमोसोम ओवर हियर। सिर्फ फर्क ये होता है कि वो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम्स नहीं है। एंड यू नो these chromatids will become chromosomes easily during S phase of interphase। तो क्रोमोसोम तो बन जाएगा ना। What is the major concept of mitosis? क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है, डॉटर सेल में वही क्रोमोसोम नंबर होता है। अगर 4 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में भी 4 हैं। अगर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 46 है। अगर 16 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल्स में भी 16 ही होंगे। This is what the major concept of mitosis is. Here I'm winding up the lecture and I hope you understood the lecture. Please give me feedback, and if you like the video, you can like it and you can share it too. Allah Hafiz for now. Allah Hafiz.